نبیوں نے نہیں دے رہے، رسول نہیں دے رہے، تو کیا سارے قانون کلیسیا کے لیے ہیں؟ بشپ نہ دوے، پادری نہ دوے، مبشر نہ دوے، لگ تو کچھ ایسے رہا، سارے قانون کلیسیا کے لیے؟ کیا نبی نہیں دے رہے، جی رسول نہیں دے رہے، تو سارے قانون کلیسیا کے لیے؟ موسیٰ نے کہیں دیا 10واں؟ ایلیا نے دیا کہیں 10واں؟ علیشا نے دیا کہیں 10واں؟ نظر نہیں آتا. نظر بائبل میں یونا نے دیا کہیں 10واں؟ ہاں ہوسیہ نے دیا کہیں، حبقوق نے دیا کہیں، حزقیل نے دیا، دانیل نے دیا، عیسائیہ نے دیا، یرمیہ نے دیا؟ چلو ملاکی کا جس کا ہم پڑھتے ہیں اسی کا بتاؤ، اس نے کہیں دیا؟ جس کا حوالہ ہم دیتے ہیں گما گما کے، اس نے کہیں دیا تو بتاؤ کہیں لکھا ہے؟ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے 10ویں حصے کے بارے میں. تو 10ویں حصے کے بارے میں ہم تو بہت ساری باتیں سیکھتے اور بہت ساری باتیں پہلے ہم نے سیکھی ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور چرچز میں بھی سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں. لیکن آج اس کو ذرا منفرد طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ جو 10واں ہے، یہ جو 10واں حصہ ہے، کیا یہ صرف کلیسیا کے اوپر ہی ہے، یا صرف کلیسیا نہیں دینا ہے، یا کلیسیا کے لوگوں نہیں دینا ہے؟ کیا آیا یہ نبیوں نے بھی دیا ہے، یا نبیوں کے بعد پھر رسولوں کا دور آیا، رسولوں نے بھی دیا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا نبی دیتے رہے ہیں؟ بالکل. کیا رسول دیتے رہے ہیں؟ اگر دیتے رہے ہیں تو کہاں پر دیا ہے، کیسے دیا ہے، کس طریقے سے دیا ہے؟ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں جی جی تو ابراہام نے خدا کے حضور اس کا حصہ دیا ہے، جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی کے بیٹے پوتے نے یعقوب نے خدا سے وعدہ کر کے کہا کہ جی تو جو مجھے دے گا میں اس کا تجھے 10واں حصہ دوں گا، پہننے کے لیے کپڑے جی اور کھانے کے لیے روٹی دے گا تو میں تجھے اس کا 10واں حصہ دوں گا. جی سر. لیکن بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے دیا، پیدائش 14 باب کے اندر ذکر ہے اس کا، جی جی ابراہیم نے اگر 10واں دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ابراہیم کے 10ویں دینے کے بعد بیٹے تک بات منتقل ہونی چاہیے تھی، پوتے کو تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اسحاق نے کہاں دیا تھا؟ پہلا سوال ہمارا یہ کہ ابراہیم نے چلے دیا ہے تو دیا، شروع کیا ابراہیم نے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات. تو ابراہیم کے بعد پھر اسحاق تھا نا، وعدے کا فرزند تو وہی تھا. تو وعدے کا فرزند جو ہے وہ دے رہا ہے تو کہاں دے رہا ہے؟ اور اگر اس نے نہیں دیا تو پھر پوتا دے رہا ہے، تو پوتے کے دینے کے بعد پھر کس نے دیا؟ میرا بھی کوئی نظر آنا چاہیے ایسا جس نے آگے اس بات کو، اس ریت کو نبھایا ہو. کیونکہ جو یعقوب ہے، یعقوب اگر دے رہا ہے 10واں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دے رہا ہے، صحیح ہے، نبیوں کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن آگے پھر اس کے بچوں نے کہاں دیا ہے؟ اس کے بچوں نے کیسے دیا؟ کیا خیال ہے بہن، بتائیں اب آپ. پھر اگر چلیں اور نبیوں نے بھی دیا ہے نہیں دیا، تو رسولوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم تو رسولوں کی تعلیم کو لے کے چل رہے ہیں نا آج. تو رسولوں نے کہاں دیا؟ جی جب انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے رسولوں کے پاؤں میں لا کے ان کو رکھا. تو کلیسیا کے لوگ تھے نا، لیکن بات یہ ہے کہ رسولوں نے کہاں دیا؟ رسولوں نے کہاں دیا؟ کس کو دیا؟ تو یوں ثابت ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بات جو ہے صرف نچلے طبقے کے لیے ہے، کلیسیا کے لیے ہے. اس کا مطلب پھر پاسبانوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، پاسبانوں کا بھی 10واں حصہ نہیں بنتا. تو یوں کہنا چاہیے گا عام زبان میں، عام الفاظ میں، کہ پاسبان جو ہے وہ لینا ہی جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے. اور بائبل مقدس میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا دینے کے بارے میں کہ رسولوں نے کہیں دیا ہو یا نبیوں نے کہیں دیا ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آگے ہم اگر جیسے آپ نے کہا ہے کہ صرف چھوٹے طبقے کے لیے، تو پھر جو ہم دیکھتے ہیں رسول نبیوں کو، تو پھر یہ کیا یعنی ہونا چاہیے؟ ہمیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں
کہ بیٹا آپ بول سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آواز آئے، آپ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تصویر اسی لیے ہم نے اس طرف نہیں کیا. آپ بیٹھتے ہیں ادھر ہی بیٹھ کے بات کریں. آپ بولے کریں آپ بات. جی ہاں جی، آپ کہہ رہے تھے کہ یوسف نے کہاں پر دیا یوسف نے؟ کوئی اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہاں یوسف نے دیا؟ مطلب میں کہہ رہی جی تھی جی، مطلب انہوں نے خداوند کو حضور نہیں دیا، پھر نبیوں کا کیا ہے؟ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم تو 10ویں کی تعلیم دیتے ہیں کہ جی 10واں دینا چاہیے، دو. تو نبیوں کو کہاں نظر آ رہا ہے ہمیں دیتے ہوئے؟ صرف 2 جگہ پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جیسے ذکر کیا ابراہیم کا اور یعقوب کا، تو یعقوب سے پہلے جو والد ہے یعقوب کا، اس کو بھی تو دینا چاہیے نا، کیونکہ نسلوں میں اگر کوئی بات کنورٹ ہوتی ہے جی بالکل تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سے کنورٹ ہوتی ہے نا، بڑوں سے ہو رہی ہے. بڑوں سے کام آئے گا تو چھوٹے تک پہنچے گا. اب وہ بیٹے تک بات نہیں پہنچ رہی اور پوتے تک پہنچ گئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات. ایسی رسولوں کی بات ہے، رسول بھی جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں. پلوس رسول تو ہوتا کہ یہاں تک کہتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو تم جو ہے وہ چندہ جو ہے ہدیہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ لیا کرو، کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے اس کے پاس اس وجہ سے. تو اگر آج کے دور میں، آج کے وقت میں، جیسے فرض کریں کوئی پاسبان یا کوئی پاسٹر فرض کر لیں جیسے میں ہی اگر آپ کے پاس آتا ہوں تو میں آپ کو بولوں جی میرے پاس ٹائم ٹوم نہیں ہوتا ملن واسطے، تو تسی سارے چندہ اکٹھا کر کے رکھ لیا کرو، جس ویلے آنا تو مینوں دیا کرو تو میں نکلی ہوں. تو کیسا لگے گا؟ پنجاب میں ہوتا رہا ہے سر، پنجاب میں ہوتا رہا ہے، لیکن کیسا لگے گا اگر ایسا کیا جائے تو؟ اوپر سے لگے گا. تو وہ پھر پلوس رسول کر رہا ہے، پھر کیا کریں؟ خداوند کے خادم نے بھی ایک بار ایسا کیا ہے. کیا؟ وہ بھی مطلب ایک سنڈے کا چندہ جو ہے نا وہ رکا تھا، تو نیکسٹ سنڈے جب آئے ہیں تو وہ ہدیہ بھی ساتھ میں کہ پچھلا جو چندہ ہے وہ بھی دے دیں. ہم نے کہا کہ چلے اس چندے میں سے چرچ کے جو کیا کہتے ہیں انسٹرومنٹ ہیں ان کو ہم صحیح کروا لیں گے، پر انہوں نے کہا کہ نہیں، جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو، اور جو جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. انہوں نے کہا کہ جو ہدیہ میرا بنتا ہے وہ آپ مجھے دیں. لے کے چلے گئے. مطلب یہ چیز کلیسیا پر ہی لاگو ہوتی ہے کہ مطلب وہی خداوند کے حضور میں 10واں حصہ دیں. ہاں تو یہی تو میں بول رہا ہوں نا، یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. بتائیں آپ لوگ کیا کتنے سال ہو گئے آپ کو خداوند میں؟ کافی. کتنے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال؟ کتنے سال؟ وہ تو میں ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں. کتنے سال؟ 10-15 سال ہو گئے؟ جی 10 سال تو ہو گئے. 10 سال ہو گئے. آپ کو کتنے ہو گئے بیٹا؟ 8-10 سال ہو گئے. ایک اندازہ 5 سال ہو گئے. اچھا، یہ بھائی سلمون کیمرے کے بیک سائڈ پہ بیٹھے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ کو کتنے ہو گئے بھائی؟ پراپر طور پہ 2 سے 2.5 سال. 2-2.5 سال. سر آپ کی تو عمر ہی تقریباً. تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج تک ہم کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو، کیا بتاتے ہیں؟ کسی ایسی چیز کی بنیاد تو نہیں رکھ رہے ہم جس کی بنیاد بائبل میں نہیں. کسی ایسی چیز کی بنیاد نہیں رکھ رہے ہم جس کی بنیاد بائبل میں نظر ہی نہیں آ رہی. صرف ملاکی کا حوالہ پڑھتے ہیں، ملاکی کا ہی حوالہ پڑھ کے تو تیسرا باب پڑھ کے اسی میں پھنسا لیتے سب کو. سر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ملاکی کا حوالے پڑھتے ہیں سر، کہ تم اپنے باپ دادا کے آئین سے مجھے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے، ان کو نہیں مانا، تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گے. پر تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع لائیں؟ دے یقی اور ہدیے میں. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ لیکن تم نے مجھے ٹھگا ہے، بلکہ تمہارے تمام قوم نے مجھے ٹھگا ہے. تو یہ حوالہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور یہ سکھاتے اور بتاتے ہیں. یہ سایہ پہلے باب میں بھی ہے. کس کا؟
ठगते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा चले देख लेते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा उसको। तो क्या ख्याल है कि फिर हम लोग गलत कर रहे हैं ये तो सब कुछ? क्या ख्याल है भाई, गलत नहीं है? उस हिसाब से देखा जाए तो फिर है। क्या ख्याल है बेटा, गलत नहीं है ये, है ना? है भाई साहब, गलत नहीं है? गलत नहीं है, अभी अपने हवाले में वो है, बाद में देख लेंगे, गलत नहीं है। जब तक पढ़ना नहीं है ना तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहा है। पढ़े आप क्या कहना चाहते नहीं नहीं, मैं ग्रंथियों में भी है ना, शायद 6 बाब में है यही कि जो क्या ये हदिये का जो खुदावन को देता है, खुशी देने वाले को खुशी से नहीं देने वाले लगता को है। खुदावंद अजीज रखता जी। सही है, पर नबियों ने नहीं दे रहे, रसूल नहीं दे रहे, तो क्या सारे कानून कलीसिया के लिए हैं? बिशप ना दवे, पादरी ना दवे, मुबशर ना दवे, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। सारे कानून कलीसिया के लिए क्या? नबी नहीं दे रहे, जी रसूल नहीं दे रहे, तो सारे कानून कलीसिया के लिए। आदम तो ये चीजें सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं फिर? जिस चीज की बुनियाद बाइबल में नहीं नजर आ रही जी कि भाई नबियों ने नहीं दिया। मूसा ने कहीं दिया 10वां? एलिया ने दिया कहीं 10वां? अलीशा ने दिया कहीं 10वां? नजर नहीं आता। नजर बाइबल में यूना ने दिया कहीं 10वां? हैं? होसिया ने दिया कहीं? हबक्कूक ने दिया कहीं? हिजकिय्याह ने दिया? दानियल ने दिया? ईसाया ने दिया? यिर्मयाह ने दिया? तो चलो मलाकी का जिसका हम पढ़ते हैं उसी का बताओ, उसने कहीं दिया? जिसका हवाला हम देते हैं घुमा घुमा के, जी उसने कहीं दिया तो बताओ, कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? तो फिर हम क्यों दे रहे हैं? हम क्यों दे रहे हैं? हमें क्या जरूरत पड़ी है दे? हम इसलिए कि जब याकूब को देखते हैं तो याकूब ने एक काम किया, जब उसने देना शुरू किया, जब अपने मामू लाबन के पास गया है तो फिर उसको खुदावन ने बरकत भी दी है देने से। सर वो बात तो ठीक है आपकी, मैं आपसे यह कर रहा हूँ कि देखे याकूब के इतने 1000 साल बाद हमें इस बात की समझ आ गई है, हाँ, जबकि हम खुदा से डायरेक्ट बातें भी नहीं करते। जी, याकूब के बाद मूसा आता है हाँ जी, जिससे खुदा डायरेक्ट बातें करता है सर, तो सर उसको भी नहीं इस बात का पता चला। उसके बाद और बहुत सारे नबी आए, यीशु आया, सैमुएल आया और बड़े नबी आए, ठीक है। कम और बेश बाइबल मुकद्दस के अंदर 84 से 86 यानी 84 से 86 नबी हैं जो गुजरे हैं। तो क्या किसी नबी को भी ये बात समझ में है जो आज हमें समझ में आ गई? ऐसा नहीं, ये गौर की बात है सर। किसी को भी नहीं सर समझ में आई जो हमें समझ आ गई है, जो आज हम कलीसिया को सिखा रहे हैं। हम अपनी तरक्की के लिए करते हैं। तो उनको तरक्की नहीं चाहिए थी नबियों को, वो तरक्की याफ्ता थे। क्या मतलब हो सकता है तरक्की से। है? ये सोचने की बात है कि ये वो सोचने हाँ जी। वाली बात है, ये गौरतलब बात है। जी जब भी देखते हैं मलाकी के हवाले को देख के बस सारे जो है ना सुनाते हैं और फिर उसके बाद नए आयतनामे आ जाते हैं, कहते हैं कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। अच्छा, वाकई में जो बात आप कर रहे हैं वासी साहब जी कि जब हम छोटे तबके के लोग हैं, हम तो नबियों को और काहिनों को और उनको समझ नहीं है इस बात की। बिल्कुल। ये बात आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि उन्हें भी चाहिए था कि वो भी देते,
ताकि वो रोल ऑफ मॉडल थे, बिल्कुल ऐसे ही है, वो रोल ऑफ मॉडल थे, उन्हें काम करना चाहिए था, बिल्कुल पर ऐसे। उन्होंने इस काम पर कोई काम तवज्जो नहीं दी। नहीं दी तो बस जो दी होती तो देखा ना बाइबल में कहीं तो होता बाइबल ना, में जिक्र होता कहीं है। तो होता ना जिक्र, जिक्र होता है। कहीं जिक्र ही नहीं नजर आ रहा, तो हम कैसे फिर इस तालीम को प्रमोट कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। अब जो आज सीखने सिखाने का अमल है, दूसरा करंथियों है 6 बाब की 9 आए थे या 9 बाब की 6 आए थे, तो दूसरा करंथियों। सब अगर हम देखते हैं जी जी इन सारी बातों पे, तो आप जो है इस बात पे आज कदम बढ़ते हैं कुछ सीखने के लिए, जी जी बिल्कुल, और चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस बात को सीखें, जी जी ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इस बात को सीखने वाले। और चर्चेस में जो खादिम हज़रात हैं, जी जो खुदा के मिल गए, खादिम हैं, वो कैसे बताएंगे पहले यानी बताते हैं, जी तो उन्हें भी इस बात पर सोचना चाहिए कि आया नबियों ने, पैगम्बरों ने, रसूलों ने खुदा के हुजूर क्या दायत दिया है या नहीं दिया, इसके बारे में अब आप बताएं। हमने तो बहुत मैंने जो समझ में था जी। और उन्हीं हम हवालों से मैंने भी कोशिश की है कि जी। बता सकूं। अब हम चाहते हैं कि इस बात पर हम सीखें, जी तो अब आप कुछ इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हम भी सीखने वाले हों और हमारे बच्चे बहन भाई भी सीखने वाले हों इस बात को। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, ये भी करते हैं इसके ऊपर बात हम। अभी कौन सा वाला ढूंढ रहे हैं आप? ये सारा ये साया में जिसमें खुदा कहता है कि तुम मुझे ठगते हो, ये साया पहले बार मिला आपको? हैं? आप बताएं। जिस सर वो जब तक ढूंढते हैं तो आप इस पर कुछ इस बात पर रोशनी डालें ताकि सीखने वाले को कुछ मिले खुदा के कलाम से, और वो आइंदा भी इस बात को ज़रा गौर तलब रखेंगे कि हाँ जी हमने ये बात सीखी थी जी और खुदा के खादिम ने हमें ये बात सिखाई है कि क्या नबियों, पैगम्बरों और रसूलों पर ये वाजिब नहीं था कि वो भी देते। हाँ जी, नहीं वो इसमें नहीं लिखा हुआ है साया में। जी 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 ये जो पहला चैप्टर है इसमें सरकशी के बारे में लिखा हुआ जी, है, जी, ठीक है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ईदी चांदों से और तुम्हारी ईदों से नफरत है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे आइन से फिर गए हो। मेरे अंदर जो है वो तुम्हारी ईदों के साथ और बदकारी की बर्दाश्त नहीं है, यही लिखा है ना यहाँ पे। जी जी मैंने इसमें ये सुना लिखा है है इसमें। आसमान और कान लगाए जी। ज़मीन के जी। खुदावन ये फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। जी। यानी कि ये खुदावन के खादम ने एक बार जिक्र किया था कि जी। मैंने कलीसिया में इतनी मेहनत की है और पर जो जिन पर मैंने मेहनत की है वो मुझे छोड़कर कहीं और चले गए, किसी और के पास चले गए। उन्होंने बोला कि मतलब मैंने मेहनत की और उन्होंने मेरे साथ सरकशी की, ये मैसेज उन्होंने एक बार मुझे सुना। देखें, मैं इस बात को भी क्लियर करता जाऊं कि लोग छोड़ते कब हैं या लोग छोड़ के जाते कब हैं। इसकी दो वजूहत होती हैं। एक वजह जो होती है वो खादम के बायस होती है, दूसरी वजह उन जिंदगियों के बायस होती है। एक वजह जो खादम के बायस होती है वो ये होती है कि एक मुकाफात अमल है। अगर खादम ने अपने उस्ताद के साथ, अगर खादम ने अपनी सीखने वाली जगह पर ये काम किया होता है ना, तो उसके साथ भी उसकी कलीसिया में वही होता है। दूसरे नंबर पे हमारी कलीसियाओं को, हमारे लोगों को एक बड़ी ना मारूसी सी आदत पड़ी हुई है। मारूसी सी आदत ये है, यानी जो बाउजदाद से, बाप दादों से चली होती है, वो ये कि हम मतलब परस्त लोग हैं। हम सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि हम यीशु से भी मतलब परस्ती के लिए प्यार करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टाइम पहले एक मेरा दिल किया इस बात पे
کہ میں کتاب لکھوں، اس کا عنوان ہوگا مطلبی یسوع، مطلبی یسوع. تو وہ پھر میں نے نہیں لکھ سکا، کچھ وجہ سے، کچھ سبب سے ایسے نہیں لکھا ہے. لیکن میرے اندر یہ بات بڑی اٹھی کہ یہ لکھی جائے کہ جو ہمارے اندر جو ایک مطلب پرستی کا روح کام کرتا ہے نا، جب تک ہمارا مطلب ہوتا ہے اس پاسبان سے، جب تک ہمارا مطلب ہوتا ہے اس کلیسیا سے، ان لوگوں سے، تو ہم بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے حساب سے چلتے رہتے ہیں. جب ہمارا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی تو کون تو میں کون. تو لہٰذا یہ ہے کہ، اور کئی بار لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. لوگوں کا رائٹ کیا بنتا ہے؟ لوگ جو ہے وہ اپنی نشو ماں کے حساب سے خوراک لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب خادم کے پاس وہ خوراک نہیں ہوتی، بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ تم اپنے جو تعلیم دینے والے ہیں اور جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں ان کو اپنی ہر ایک اچھی چیز میں، اچھی نعمت اور برکت میں شامل کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خادم کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو، بائبل بھی کہتی ہے. اور پھر یہ کہتی ہے کہ خادم جو ہے وہ تعلیم دینے کے لیے محنت کرے، کلام سنانے کے لیے محنت کرے. صرف یہ نہیں کہ بس جی ہاں جی گھر سے سوئے کے اٹھا آیا، صبح اٹھ کے جی چرچ سنڈے کی میٹنگ ہے جی اپنے کلام سنانا ہے، کوئی بھی آیت کھول کے کچھ بھی چلو جی سنا دے. ایسے نہیں، محنت کرنی چاہیے اس کو، کہ محنت کرے کہ ہاں جی میں نے اپنے لوگوں کو جو خوراک دینی ہے وہ کیا دینی ہے. اب اگر گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے یا گھر پہ کوئی لوگ آتے ہیں تو ہم کیا بازار سے کچا گوشت لا کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے نا، بلکہ اس کو پکاتے ہیں. کبھی ہم کڑھائی بنا لیتے ہیں، کبھی ہم سالن بنا لیتے ہیں، کبھی ہم قورمہ بنا لیتے ہیں، کبھی ہم کچھ بنا لیتے ہیں. اسی طرح جس طرح اس خوراک کے لیے محنت ہوتی ہے، اسی طرح اس خوراک کے لیے بھی محنت ہے. تو خادم کو چاہیے کہ محنت کرے. تو جب خادم محنت نہیں کرتا، لوگوں کی نیڈ پوری نہیں ہوتی، لوگوں کی خوراک نہیں پوری ہوتی روحانی طور پہ، تو پھر لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اس جگہ جائے، وہ اس جگہ موو کر جاتے ہیں جہاں سے ان کو ان کی خوراک مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ روحانی سٹیجز ہیں، روحانی سٹیجز کے اندر آہستہ آہستہ انسان بڑھتا ہے. تو جب وہ بڑھتا ہے تو اس کی خوراک بھی بڑھتی ہے. جب ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی خوراک کم ہوتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے تب اس کی خوراک بڑی ہوتی ہے. تو جب بڑھتی ہے خوراک تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو خوراک بھی اسی حساب سے چاہیے. تو پاسبان کا کام ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، کیونکہ وہ محنت اس لیے اس کے اوپر ہے کیونکہ وہ اپنی دعیقیاں، اپنے ہدیے، اپنے شکرانے، اپنے نذرانے خود خادموں کو دے رہے ہیں. تو جب خادموں کو دے رہے ہیں تو خادم کو بھی چاہیے کہ وہ جو اجرت اس کو مل رہی ہے، وہ جو اس کو اس کے کھیت کا حاصل مل رہا ہے، پھل مل رہا ہے، وہ اس کو حق حلال سے کر کے کھائے. تو حق حلال کا کیسے کر کے کھائے گا؟ جب وہ تعلیم دینے میں محنت کرے گا، جب وہ راتوں کو اپنی کلیسیا کے لیے جاگے گا، جب ان کی ہر ایک نیڈ اور ضرورت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی چیز سے ریلیٹڈ، اسی بات سے ریلیٹڈ بائبل مقدس میں ایک آیت لکھی ہے کہ پوری دعیقی کا لاؤ. اب ذخیرہ خانہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ ذخیرہ خانہ جو ہے یہ ہیکل تھی. یہ ذخیرہ خانہ جو تھی آج چرچز ہیں. میں کہتا ہوں نہیں ہے، نہ ذخیرہ خانہ ہیکل، نہ ذخیرہ خانہ چرچز. تو سر پھر ذخیرہ خانہ کیا ہے؟ ذخیرہ خانہ کون سی جگہ جہاں پہ ذخیرہ خانہ کے بارے میں کہا گیا کہ پوری دعیقی پورا 10واں حصہ تم ذخیرہ خانہ میں لاؤ؟ چلے اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو نبی والی بات ابھی میں نے پہلے چھیڑی کہ وہ جو نبی والی بات جو ہم کر رہے تھے کہ نبیوں نے نہیں دیا، نبی کیوں نہیں دے رہے تھے، یا پھر نبیوں نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، رسول ہے تو رسولوں نے نہیں کیا، رسول کیوں نہیں کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ نبیوں کے دور میں، نبیوں کے اوقات میں، نبیوں کے وقت میں جب ہم دیکھیں تو بہت سارے نبی ایسے آئے ہیں جن میں ابراہیم اور یعقوب ایسا نبی ہے جو خدا کا پورا 10واں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 10واں دینے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری قربانیاں بھی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرے نبیوں کو دیکھتے ہیں، بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، داؤد کو دیکھتے ہیں، سلیمان کو دیکھتے ہیں، ساؤل کو دیکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، تو سر وہ 10ویں حصے سے بہت زیادہ بڑھ کر دے رہے تھے. اس لیے وہ 10ویں کے زمرے میں نہیں آتے. 10ویں کے زمرے میں وہ آتا ہے جو صرف 10واں ہی دینا چاہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جس نے 10واں ٹھہرایا وہ 10واں دیتا ہے.
لیکن بائبل جو ہے وہ صرف آپ کو 10ویں کے لیے بالکل ایسے پابند کرتی ہے کہ آپ نے 10ویں سے پیچھے نہیں جانا، آگے جانے کے لیے پابند نہیں کر رہی آپ کو۔ تو جو نبی آئے ہیں جن نبیوں نے خدمت کی ہے، ان نبیوں نے بڑی قربانیاں گزرانی ہیں، مینڈے، بچھڑے، بیل، بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں۔ اب وہ جو بڑی بڑی قربانیاں کی گئی ہیں وہ تو 10ویں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جو انہوں نے خدا کی راہ میں خدا کے لیے قربان کیے۔ پھر خدا نے اس سارے سلسلے کو ایک طریقہ کار میں بدلا۔ ایک طریقہ کار میں بدلنے کے بعد خدا نے پابند کیا، جب اس نے شریعت کو اتارا۔ جب اس نے شریعت کو اتارا تو اس نے کہا کہ اب جو ہے یہ ہوگا کہ ایک قبیلہ جو ہے میں نے اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے چن لیا۔ ابراہیم کے وقت میں وہ قبیلہ نہیں تھا، تو ابراہیم نے ڈائریکٹ اپنی 10واں دیہ کی خدا کو دی، ملک صدق کو دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعقوب نے بھی ڈائریکٹ اپنی دیہ کی 10واں حصہ خدا کو دی۔ جو پرانے عہدنامے میں جب تحریری طور پر شریعت نہیں آئی تھی تو اس وقت تک لوگ جو تھے گھر کے سربراہ وہ خدا کے حضور قربانیاں چڑھاتے تھے اور خدا کے حضور لاتے تھے کچھ دینے کے لیے، چاہے وہ 10واں تھا، چاہے وہ دیہ کی تھی، یا چاہے وہ ہدیہ تھا، یا وہ چاہے شکرانہ تھا، یا چاہے وہ گناہ کے شاید یا کفارے کے لیے تھا، کسی بھی چیز کے لیے تو گھر کے سربراہ کو یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ یہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب موسیٰ کا ٹائم آیا، موسیٰ کا وقت آیا، تو موسیٰ کے ٹائم پہ خدا نے پراپر شریعت دے دی ہے۔ اب جب خدا نے پراپر شریعت دی تو پراپر شریعت دینے سے ہوا کیا؟ خدا نے بتایا کہ بھائی نہ زیادہ چاہیے نہ کم چاہیے، یہ اسپیسیفک ہے جو میرا ہے مجھے چاہیے۔ اور وہ کیا بتایا؟ بولا کہ 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ میں نے اپنے لیے لے لیا جو میرا کام کرے گا۔ اسی طرح خدا نے آج، میں نے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا نا، تو اس کا بھی میں اس کے اندر بیچ میں جواب دوں گا۔ آج خدا نے بہت سارے لوگوں کو، جس طرح خدا نے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ اپنے لیے لے لیا کہ یہ میرا کام کریں گے، تو لاویوں کا کوئی اور کام نہیں تھا بلکہ ان کا کام تھا وہ کہانت کا کام ہی سر انجام دیتے تھے، کہانت کا کام ہی ان کے سپرد کیا تھا، ان کے سپرد کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ تو ان کے پاس دوسرے جو 11 قبائل تھے یا 11 قبیلے تھے، انہوں نے اپنا اپنا 10واں لے کے آنا ہوتا تھا ہیکل کے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ اسی 10ویں سے ان کی پرورش ہوگی جو لاوی تھے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پاسٹر ہے، ایک پاسبان ہے، یہ خدمت کر رہا ہے اور کام نہیں کرتا، اس کا گزر کیسے ہوتا ہے؟ آج بھی خدا نے اپنے کچھ لوگوں کو چنا ہوا ہے اپنے کام کے لیے، وہ دوسرا کام نہیں کر رہے، وہ دوسرا کام نہیں کر پا رہے، وہ خدا کا کر رہے ہیں۔ تو جیسے خدا نے لاویوں کے لیے ان کی پرورش کا انتظام کیا، خدا آج بھی اپنے لوگوں کے لیے ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ آمین۔ اسی طریقے سے اب آگے چلتے ہیں۔ سر میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، تھوڑا سا نہیں وہ کلیئر ہو جائے گی آگے جا کے بات، نہیں تھوڑا سا جی اس میں پلیز یہاں سے تھوڑا پلیز چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات پلیز پلیز جی جی۔ یہ جو دیہ کی ہے جی یہ خادم کے لیے ہے؟ جی میں عرض کر رہا ہوں آگے جا کے جی آگے میں اس میں سے تھوڑا سا سیکھنا چاہتا ہوں جی جی پلیز۔ کہ دیہ کی جو ہے یہ یعنی آج کے جو کاہن ہیں یا آج جو خادم ہیں یا آج کے پاسٹر ہیں یا پادری صاحب ہیں، یہ ان کی ہے ذاتی یا اس میں بھی کوئی خداوند نے کچھ رکھا ہوا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے جائیں گے، آپ کا سوال بالکل اس کے اندر ہی ساتھ ساتھ ہم کلیئر کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جب شریعت دے دی گئی، شریعت دینے کے بعد خدا کئی سالوں تک دیکھتا رہے، کئی سالوں تک دیکھتا رہے۔ نبیوں کے دور گزرے، نبیوں کے دور میں بھی دیکھتا رہا، ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کے دور میں جیسے قربانی اور سارا کچھ دیا جا رہا وہ ہو رہا تھا، خدا نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ لیکن پھر ٹائم گزرتے 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 پھر ایک وقت آیا، خدا نے ملاکی نبی کو یہ بات سکھائی اور بتایا کہ تو میرے لوگوں کو بتا۔ اسی لیے جب تیسرے باب کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے، اب کیا کن کو رہے
क्या किन को रहा है? उनको जिनको कानून दिया मूसा की मार्फत। कहता है तुम अपने बाप दादा के अयाम से, यानी कि जो तुम्हारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने भी इस चीज को नहीं माना, उन्होंने भी इस चीज को फॉलो नहीं किया। जिनको ये चीजें दी गई थी, जिनको ये चीजें बताई गई थी, उन्होंने भी नहीं मानी। कहता तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनर्रफ रहे, इनको नहीं माना, नहीं माना। सही। खास तौर पर वो तवज्जो लाता है 10वें हिस्से के ऊपर और हदिये के ऊपर। कहता है कि तुमने नहीं माना, खास तौर पर तवज्जो लाता है। कौन सी बात? कहता है कि फिर तुम कहते हो कि हम कौन सी बात में रजुल हैं, हम कौन सी बात में रजुल। फिर उसने स्पेसिफिक एक बात जो कहना चाहता है खुदाबंद, उसके बारे में उसने तवज्जो दिलाई है, और उसने कहा कि तुम जो हो किस चीज के अंदर, हदिये और 10वें हिस्से के अंदर मेरी तरफ रजू नहीं लाते, बल्कि उल्टा मुझे ठगते हो, उल्टा मुझे ठगते हो। तो अब खुदा, इसका मतलब ये है, फिर कहता क्या कोई इंसान खुदा को ठग सकता है? तो हम कहते नहीं ठग सकता। तो कहता तुमने मुझे ठगा, बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। अब जब वो पूरी कौम की बात करता है, तो उस पूरी कौम के अंदर वो जितनी पीढ़ियां गुजरी हैं, वो जितनी नस्लें गुजरी हैं, बिल्कुल जिसने इस हुक्म पर अमल नहीं किया, वो सब आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा खुदा जो है वो नबियों को भी नहीं बख्शता अपने आइन के लिए। अगर वो बख्शता होता तो मूसा यकीनी तौर पर उस जमीन में जाता, उस खिते में जाता जिसके लिए खुदा ने उसको मना कर दिया कि भाई तो इतने देख ले, तो जागा नहीं जा सकता, ठीक हो गया, उसने मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा जो है वो नबियों के ऊपर भी अपने कानून सादर करता है। जब नबियों पर कानून सादर करता है, इसलिए तो उसने कहा बाइबल मुकद्दस मलाकी की किताब में, ठीक है, कि तुम जो, क्या कोई आदमी खुदा को ठग सकता है? तो हम कहते हैं नहीं ठग सकता, पर वो कहता तुमने मुझे ठगा, बल्कि तुमने नहीं, सारी कौम ने मुझे ठगा। अब वो सारी कौम के अंदर नबी भी तो आते हैं ना, सारी कौम के अंदर बादशाह भी तो आते हैं ना, सारे आते हैं ना, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन जिंदगियों ने उसके उस हुक्म को जो तहरीरी तौर पर दे दिया गया नहीं माना, तो सब आ गए ना उसके अंदर। तो जब सब आ गए तो खुदा फिर सब के लिए बात कर रहा है, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसी है। आज भी, आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस 10वें हिस्से की तरफ नहीं आते, ठीक है। और ये 10वां जो है ये खादम का है या नहीं, ये तो चले बाद में बात करते हैं। ये 10वां हिस्सा खादम को भी निकालना है। जिसके पास 10वां हिस्सा आ रहा है ना जी, उस खादम ने भी, उस बिशप ने भी, उस पास्टर ने भी, उस पासबान ने भी 10वां हिस्सा खुदा का निकालना है। तो बात ये आ जाती है कि चलो जी वो तो कलीसिया का रहनुमा सरबराह है, तो वो तो उसको सब देंगे, तो वो कहाँ देगा? वो सारी दया की इकट्ठी करेगा अपनी, उस्मान ते सुटेगा, तो जिन्हें रब नू चाहिए ने रब रख लेगा, तो बाकी जिन्हें ओनू चाहिए ओनू मिल जाएंगे। ऐसा होगा तो वो किसको देगा भाई? उसके ऊपर कोई पासबान नहीं है, वो चेयरमैन है अपनी मिनिस्ट्री का, वो उसके ऊपर कोई पासबान नहीं है, ठीक है। वो बिशप है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उसके साथ नीचे पासबान काम कर रहे हैं, कलीसियां काम कर रही हैं। दायकी उसके पास आती है, तो अब उसने भी तो अपनी दायकी निकालनी है ना, उसके ऊपर भी तो ये हुक्म सादर है ना भाई। तो जब उसके ऊपर ये हुक्म सादर है तो वो कहाँ निकालेगा? सवाल फिर खड़ा हो गया, वो कहाँ निकालेगा? वो क्या करेगा? क्या ख्याल है? कुछ बात करना जी 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 चर्च के खजांची चर्च के खजांची का चर्च के खजांची को देंगे। नहीं, नहीं। बात यह है कि खादिम के पास जो जमा हुआ है, मैं एक अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ जी 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 कि अगर खादिम के पास की जमा होगा तो यकीनन उसके पास भी कुछ लोग आते होंगे, खुदा के खुदाम आते होंगे, या ऐसा प्रोग्राम आ गया उसमें कुछ रुपये पैसे की ज़रूरत पड़े, तो वो उसमें अगर वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर नहीं तो उसकी मर्जी है। आप इसमें क्या कहते हैं? देखिए सर, बात यह है कि 10वां हिस्सा देना किसको बनता है? 10वां हिस्सा देना उसको बनता है जिसको आप अपने से उत्तम समझें। ठीक है।
इंसान, आज का इंसान खुदा को दे रहा है ना, तो खुदा को हम अपने से उत्तम समझते हैं, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन खुदा तक पहुंचाने के लिए कोई वसीला तो चाहिए, क्या ख्याल है सर? बिल्कुल। जब खुदा तक पहुंचाने के लिए कोई वसीला चाहिए तो फिर वो कौन सा वसीला होगा? वो कौन सा वसीला होगा? खुदा के खादम। खुदावन के काम में पर मसला ये है कि आजकल के दौर में कोई खादम अपने ऊपर अपने से उत्तम खादम किसी को मानता ही नहीं। ये तो अब जब मानता नहीं है तो फिर किसको देगा भाई? कैसे कबूलियत होगी? दो ऐसा? खादम एक खादम कोई नहीं जानते हैं? ऐसा है क्या नहीं? हाँ। जब वो मानता ही नहीं है, जब वो सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है किसी को उत्तम, तो किसको देगा भाई? वो कहाँ निकालेगा अपना 10वां हिस्सा? जैसे बिशप है तो उसके नीचे जो खादम है, जैसे खुदावन की खेती में जो नहीं, बिशप को जो आ रही है, मैं कह रहा हूँ बिशप को आ गई। जी। बिशप ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? हाँ, बिशप किसको देगा? ਬਿਸ਼ਪ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਗਾ? ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਪ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਸ਼ਪ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੋ ਖਾਦਮ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, हाँ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ उनको क्यों देगा? उन्होंने तो उसको दी है, चर्च में सैलरियां लगी, उन्होंने तो उसको दी है। तो फिर ये जो चर्च में जैसे पास्टर हैं, पादरी हैं, उनकी जो सैलरियां लगी होती हैं, वो सैलरियों वाला एक तो अलग सिस्टम है ना, वो अलग सिस्टम है। वो एड्स आ रही होती हैं बाहर से, मिनिस्ट्री बहुत अमीर होती है, बाहर बैठे होते हैं लोग, एड्स चल रही होती हैं, सैलरियाँ क्यों से सैलरियाँ नहीं होती, क्योंकि बड़ी महदूद होती हैं ये जी। तो वो कहाँ देगा? कहाँ निकालेगा? वो क्या करेगा? कैसे करेगा वो? जैसे फर्ज करें सर आप भी पासवान हैं, आप अपना 10वां कैसे निकालते हैं? कोई आपकी भी तो लॉजिक मैंने होगा तो ना। एक ही चीज़ की करता हूँ, जी जो मुझे मिलते हैं उनमें से जो चर्च के कुछ काम होने वाले होते हैं मैं उनको कर देता हूँ, उनमें इन्वेस्ट कर देता हूँ पैसों को। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है आपका तरीका है। मैं उसे इधर उधर वो नहीं करता इन्वेस्ट। मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ चर्च में ज़रूरत है वो मैं चीज़ ले आता हूँ, या किसी चीज़ की ऐसी जो मैं समझता हूँ कि नीड है उसे लाकर वो, क्योंकि मैंने बिल्कुल। किसी को क्या करना है, मैं जी। उसको अगर लेकर आ जाता हूँ तो मेरे लिए वो वहाँ पर पहुँच गई है जहाँ पर। सर वो बिल्कुल बजाय आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, आपका तरीक़ाकार भी ठीक है, आपका सिलसिला भी ठीक है, लेकिन ये जो 10वां हिस्सा है, ये जो दय यकी है सर, ये कुर्बानी है। जब तक आपके लिए कोई सरदार काहिन या काहिन उस आपके 10वें हिस्से में दुआ नहीं करता सर, वो कुर्बानी नहीं गुजरानी चाहिए। ये बात समझे? जैसे फर्ज करें मैं आपको 10वां देता हूँ तो आप मेरे लिए दुआ करेंगे रखना में खड़े होकर, जी बिल्कुल। सर आपकी दुआ के वसीला से वो मेरी कुर्बानी मकबूल ठहरी और आपकी दुआ के वसीले सर मुझे बरकत मिलेगी। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल। जब तक मैं अगर अभी 10वां हिस्सा अपने निकाल के बाइबल में रख देता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो बाइबल से पीए मेनू बरकत चौकी मिलेगी, तब सर कभी भी नहीं मिल सकती जब तक उसके ऊपर खादम दुआ नहीं करता। आप दुआ नहीं करेंगे मेरे लिए, मुझे उस दुआ की जरूरत है सर कि मेरी कोई कुर्बानी को, जैसे फर्ज करें मैं एक बकरा ले आया, मेंढा ले आया, अब मैं हैकल में नहीं लेके जा सकता सर, मुझे काहिन की जरूरत है जो उस कुर्बानी को कुर्बान करे। जब वो कुर्बानी कुर्बान होगी तो सर मुझे बरकत मिलेगी। जी ठीक है ना सर? मैंने अब जैसे आपको अपना 10वां दिया, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ के वसीले मुझे बरकत मिलेगी। वो जो पैसे मैंने निकाल दिए ना, या उससे मैं कोई चीज ले आया तो मुझे बरकत नहीं है सर, क्योंकि जरूरी है कि मेरे लिए कोई दुआ करे, कोई रखना में खड़ा हो, मेरी कुर्बानी को गुजराने सर। अब एक बात में जैसे आपने कहा जी। कि जब तक कोई दुआ नहीं करे, जी सर, आपने जैसे मुझे दी, आपने अपनी शुक्रगुजारी मुझे दी, जी सर, मैंने उस पर दुआ की, जी सर, तो उसके बाद मैंने भी तो आके घर पर एक दुआ की है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या है? मतलब क्या दुआ की? जैसे कि खुदावन
जो मुट्ठी खुदा तेरे हुजूर खुली है जी और जिसे ये खादिम जानते हुए दिया है खुदा उसकी इस दया यकीन को तो कबूल फरमा, ठीक है। और खुदा मुझे भी, ताकि मैं तेरी हजूरी में जो है वो कर सकूँ। सर देखें, मैंने अपना 10वां हिस्सा दिया आपको 1000 का, जी 1000 मैंने दे दिया आपको अपना 10वां। जी अब उस 1000 में से आपकी निकलती है 100। 100 अब वो 100 के ऊपर सर आपके लिए कोई दुआ करेगा? आपने तो 1000 रुपये कर दिए सर, वो कुर्बान हो गया, ठीक, वो पहुंच गया खुदा की हजूरी में, लेकिन उस 1000 में से 100 आपका भी निकल रहा है। सही, अब उसके ऊपर भी कोई दुआ करने वाला हो जो गुजराने कुर्बानी, आपने तो मेरी कुर्बानी गुजरान दी सर। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि नबी जो थे या जो काहिन थे वो भी इसी सिलसिले में स्टक हो गए, सही, जिसकी वजह से बाइबल मुकद्दस में लिखा कि तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। ये बात समझे सर? अब सर इसका तरीकेकार ये है कि देखें, चर्च का एक सिस्टम होता है, हर चर्च का एक अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीकेकार है। बिल्कुल, अब कुछ चर्चिस के अंदर ये सिस्टम होता है, जैसे मैंने अपने चर्च में ये राइज किया हुआ है। सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि जो हदिया होता है सर, जी, वो हदिया चर्च में जमा हो रहा है, मेरा उससे कुछ लेना चाहिए, ठीक, ठीक है सर। हर हफ्ते का, किसी भी हफ्ते का मैं चंदा या हदिया नहीं लेता। कोई स्पेशल शुक्रगुजारियां आ रही हैं, वो भी चर्च में जमा हो रही हैं। कोई स्पेशल चर्च के लिए हदिया आ रहा है, हत्ता कि मुझे कोई दे तो मैं भी जमा करा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीव है। और खादम अगर ये भी नहीं कर सकता तो यार वो खादम ही नहीं है जो इस दिए में भी खयानत कर जाए, ठीक, ठीक है। जो दिया है मुझे बड़ी ईमानदारी से खुदा के घर में खुदा के लिए पहुंचाना है, वो सही, दे दिया। अब जो खजांची है या जो चर्च फंड है जिसके पास, सर उसका खादम होना बहुत जरूरी है। सही, खादम होना और उसका सर सॉरी तुझे मेल होना बहुत जरूरी है। ठीक, मेल खादम होना बहुत जरूरी है। क्यों सर? वो लोगों की कुर्बानियां गुजरान रहा है। ठीक, अगर वो मुबशर है, अगर वो पास्टर है, अगर वो असिस्टेंट पास्टर है, अगर वो डीकन है, तो बहुत बेहतरीन सर। ठीक, क्योंकि पुराने अदनामे में कहानत के काम पर सर कोई फीमेल हमें कुर्बानियां गुजराती नजर नहीं आती। अब जो उसके पास आ रहा है सर, वो मेरी, आपकी, इनकी, हमारी कुर्बानी है। सही, कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, कोई हदिया है, कोई हदिये की कुर्बानी है, कोई किसी और तरह की कुर्बानी है, सारी कुर्बानी है सर। जी, जी, जब वो लेता है, रिसीव करता है, दुआ करता है, तो सर वो उसकी कुर्बानी गुजारनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा क्या तरीकेकार है? जो मेरे पास 10वां हिस्सा होता है मेरा, मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, उसके अंदर भी अलग तरीकेकार है सर। अब मैं सर आपकी उस बात का जवाब देने लगा हूँ जो आपने की बात। जब खादम के पास 10वां आता है, ठीक है, तो खादम के पास जब आपने 10वां दिया, आपने 10वां दिया, किसी और ने 10वां दिया, 10वां जब आता है तो सर उसके हिस्से हैं, उसके हिस्से हैं, उसके भी हिस्से, उसके हिस्से हैं। मैं अभी अपनी दयकी की बात में बात करूंगा, लेकिन जो मुझे आ रही है उसके हिस्से हैं, बाइबल मुकद्दस कह रही है। लेकिन बात यह है कि वो हिस्से कौन करेगा? बाज़ औक़ात देने वाले खुद कर रहे हैं, लेकिन देने वाला खुद ना करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा पूरी दयकी ज़ख़ीरा खाना। तो ज़ख़ीरा खाना कौन है? ज़ख़ीरा खाना क्या हैकल है, चर्च है? नहीं, ज़ख़ीरा खाना खादम है, खादम है, आपका खादम है। अब ज़ख़ीरा खाने का मतलब क्या है? वो जगह जहाँ बहुत सारी चीज़ें जमा हो, जहाँ से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब ये मेरे खादम है, मैं इनको 10वां हिस्सा देता हूँ, ये मेरे लिए ज़ख़ीरा खाना है। पता क्यों? जब मुझे कोई तकलीफ होती है, जब मुझे कोई बदरू परेशान करती है, जब मुझे कोई बीमारी होती है, जब मुझे कोई निकाह होता है, जब मेरा कोई जनाजा होता है, जब मुझे चर्च में कोई और ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है, मैं किसके पास आता हूँ? चर्च दी कंधा टकरा मारने। चर्च से जे ज़ख़ीरा खाना है, चर्च ज़ख़ीरा खाना है, तो की चर्च आके बह जाने दोबारा वाल देख रहे थे चर्च सानू दे दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो कोई तो है जो आपके लिए ज़ख़ीरा खाना का काम करता है, खुदा से लेकर आपको देता है। तो वो खादम जो है वो मेरे लिए ज़ख़ीरा खाना है। सही हो गया? अच्छा, इसी के अंदर एक और बात भी आ जाती है यार, ये जो चले ठीक है, मान लिया जी ज़ख़ीरा खाना खादम है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला खादम ज़ख़ीरा खाना है कि वो वाला खादम ज़ख़ीरा खाना है? इस पे गौर करना। खादम तो बहुत सारे होते हैं, अब ये कैसे पता चलेगा ये वाला खादम ज़ख़ीरा खाना मेरा या वो वाला खादम ज़ख़ीरा खाना है?
اس کے اوپر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک استاد تھا, تو استاد نے کیا کیا, اپنے شاگرد نے اس سے سوال کیا استاد سے. شاگرد نے کہنے لگا استاد جی گل دسو سانو دسواں کتنے دینا چاہیے. انہوں نے کہا پتر آ جا تینوں ایسے سکھائیے دسواں کتنے دینا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا ہوٹل پر بیٹھ کے انہوں نے چنگا کھانا منڈیا, چنگا انہوں نے ریجا لا کے کھانا کھاتا. کھانا کھانے کے بعد ہوا کیا, استاد نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا, اس کو کہا چل آ جا چلیے. کہنے لگے استاد جی کی ہو گیا, جتیاں مارن گے, بل نہیں دینا انہوں نے. کہنا نہیں تو آ جا میرے نال, کچھ بھی نہیں ہوتا. انہیں کہا لے کے کتنے چلے. وہ چل پیا, کہنا آ جا اگلے ہوٹل تے چلنے, اتنے بل دینے. کہنا استاد جی تہاڈا دماغ خراب ہو گیا, روٹی اتنے کھادی ہے تے بل لگے. کہنا 10واں حصہ بھی اتنے ہی بنتا ہے جتنے تہاڈی ضرورت پوری ہوتی ہے, جتنے روٹی کھادی. روٹی کھانا کیا ہے؟ روٹی کھانا یہ ہم روٹی کھا رہے ہیں, یہ ہم روٹی کھا رہے ہیں, روحانی خوراک کھا رہے ہیں. جہاں سے آپ کی روحانی خوراک پوری نہیں ہوتی, جہاں پہ آپ کو سر روحانی خوراک نہیں ملتی, وہاں آپ کا 10واں بھی نہیں بنتا. بل تو اتنے پھٹے گا نا جتنے روٹی کھاتی ہے سر. تو میرا خیال ہے اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارا ذخیرہ خانہ کون ہے. کلیئر, کون سا خادم ہمارا ذخیرہ خانہ ہے سر, جہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں, جہاں سے ہمیں ریسیو ہو رہا ہے, جہاں سے ہمیں مل رہا ہے, وہ ذخیرہ خانہ ہے ہمارا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ ہوٹل روٹی کھاتی ہے اگلے ہوٹل جا کے بندہ بل پڑوائے, نہیں ایسا نہیں. جہاں اپنے روحانی خوراک اپنی یہ پائی ہے, جہاں سے آپ نے بلیسنگ ریسیو کی ہے, جہاں سے آپ نے شفا ریسیو کی ہے, جہاں سے آپ کے اوپر ہاتھ بڑھا ہے, آپ کی فیملی پر, آپ کے اوپر آپ کی برکتیں کھلی ہیں, وہی آپ کا ذخیرہ خانہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس لیے بائبل مقدس میں لکھا پوری دہی کی ذخیرہ خانہ. اب اس شخص کو جو دہی کی دے رہا ہے سر, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پوری دہی کی ذخیرہ خانہ کے پاس لائے, یعنی خادم کے پاس لائے. یعنی کہ وہ زندگی خود سے 3 حصے نہیں کر سکتی. بہت سارے لوگ ایسا کر دیتے ہیں, لیکن خود سے وہ 3 حصے نہیں کر سکتی, کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے, پوری دہی کی. یہ نہیں کہا کہ ایک حصہ جو خدا کا بنتا وہ لے کے نا, پوری دہی کی ذخیرہ خانہ. اچھا, اب جو ذخیرہ خانے والے کا کام ہے, اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو دہی یقیاں اس کے پاس آتی ہے اس کے وہ 3 حصے کرے گا, جو بائبل کہہ رہی ہے. اس کے 3 حصے کرے گا. 3 حصے کس کس کو کرے گا, کیسے کرے گا؟ غریبوں یتیموں کا حصہ نکالے گا. بھائی ابھی دیکھیں کیلکولیشن ہے سر, ایک کیلکولیشن ہے. فرض کریں ایک خادم ہے, اس کے پاس سب لوگوں کی دہی کی آئی 10,000 کے, ٹھیک ہے. حصے سر کتنے کرنے؟ 3. 10,000 کے 3 حصے کریں. سر نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. آپ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں 3,333.3. اشاریہ چلے گیا نا, تو کسی نے 34 دینے پڑیں گے, کسی نے 35 دینے پڑیں گے. اب یہ جو 3 حصے ہیں, اس کے اندر بھی ایک کیلکولیشن ہے الگ. اس کے اندر کیلکولیشن یہ ہے, اس کے اندر 3 لوگوں کو دیا جاتا ہے. ایک حصہ خادم کا ہے, دوسرا حصہ جو ہے ٹھیک ہے, اور تیسرا حصہ سر, تیسرا حصہ جو ہے ہیکل کے لیے, چرچ کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے. اچھا 15 باب پڑھ لیتے ہیں مستثنا کی کتاب. پندرہ باب کی 26 آیت پڑھیں گے. ہاں جی 26 آیت پڑھیں گے. باب کی 26 نہیں, 14 باب کی 22ویں آیت پڑھیے. ایک منٹ دکھائیے جی, پڑھیے. خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے, تو اپنے غلہ میں سے جو سال بہ سال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دہی یکی دینا,
और तू खुदावन अपने खुदा के हजूर उसी मुकाम में जिसे वो मुकाम जिसे 22वीं आयत से पढ़ रहे हैं ना, 14वें बाब की 22वीं आयत से। जी 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 पढ़िए। तू अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दयकी देना जी। और तू खुदावन अपने खुदा के हजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गल्ला 27वीं आयत से पढ़िए। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना, क्योंकि उसका ना तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है। 3 बरस के बाद तू तीसरे बरस के माल की सारी दयकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। जी। तब लावी अब गौर से बात सुनिएगा, पहला हिस्सा किसका हो गया? लावी का हो गया, यानी खादम का हो गया, पास्टर का, खादम का। अब इसके साथ एक और बात लिखी है भाई, दोबारा से 27वीं आयत पढ़िएगा, जरा गौर से सुनिएगा जी। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना जी। क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं है। जो लावी है तेरे फाटकों के अंदर है, छोड़ ना देना। क्यों ना छोड़ना? क्योंकि उसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं। उसको मैंने कोई स्पेसिफिक जमीन नहीं दी जिसमें वो अपना हासिल बोएगा, हासिल लेगा और फिर उसमें से खाएगा। ठीक हो गया। अब लावी जो है, काहिन जो है, कहानत का काम करने वाले जो हैं, वो कौन है? लेडीज नहीं है, मर्द है, मर्द हजरात है। मर्द हजरात वो हैं जिन्होंने कमाना है, कमा कर लाना है और खिलाना है और खाना है। इस हिसाब से मर्द नहीं कमा रहे। ठीक है, मर्द खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा के एलची हैं, खुदा के मजदूर हैं। ठीक है, लावी जो हैं खुदा के चुने हुए लोग जो खुदा की खिदमत का काम अंजाम दें। इस हिसाब से एक हिस्सा बन गया लावियों का। अब दूसरा हिस्सा पढ़िएगा भाई। और 3 बरस के बाद 29वीं आयत से। तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मिरास नहीं और परदेश और यतीम और हाँ जी, बेवा और परदेसी। और परदेसी। हाँ जी, पहला हिस्सा कितना हो गया? लावियां था। हाँ जी, और तेरे साथ परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो अच्छा, परदेसी और यतीम और बेवा औरतें। जो अब एक मिनट, परदेसी और यतीम और बेवा औरतें, कितनी कैटेगरी होगी? 3 कैटेगरी। अब परदेसी कौन है? जो बाहर से आता है उसको क्या बोलेंगे? हाँ भाई मेरे पास दही के पैसे पड़े, तू ले ले। परदेसी आपने कैसे है? स्पेसिफिक कोई चीज नहीं जैसे बताया ना। जैसे कि खुदा का खादम बाहर से आता है, बाहर से जो सही खुदा है, का आता है, काम- विजिट हाँ। करता है या रफाकत करता है, उसको परदेसी में काउंट कर सकते हैं। नहीं, परदेसी वो है जिसको आप जानते नहीं है। ठीक है सर, आप मेरे लिए अनजान तो नहीं है ना? आप मेरे लिए अनजान तो नहीं है ना? ठीक है, परदेसी वो है जिसके हमारे साथ कोई जान पहचान नहीं है। अब ये कौन सा परदेसी, किसको देनी है भाई? किसको देनी है? हाँ जी, परदेसी या फिर वो जो परदेश से आया फॉरेनर जो होते हैं उसको भी परदेसी हाँ, बोलते कह सकते हैं, आप उसको भी दे सकते हैं। पर हर रोज परदेसी कितों लभोगे भाई? कितों बार लभोगे यार? हर रोज हर महीने कितों लभोगे यार? हैं। हाँ जी, मतलब आप किसी की माली, किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, किसी बाहर जरूरतमंद किसी की हेल्प कर जरूरतमंद देना, की। जिसको आप समझते हो कि इसको नीड है। बाकी के आप जानने वालों को देंगे। वो नहीं, शख्स जो कोई नहीं। अनजान शख्स है अनजान। और ज़रूरतमंद है, समटाइम हाँ, खुदा का रूप ज़रूरत- निकाल कर देता है। एक्चुअल यही बात है, यही चीज है। जरूरतमंद है वो। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, जरूरत है उनको, आप नहीं हाँ। जानते उनको। सर मिलते हैं ना बहुत सारे लोग, कई मांगने वाले भी मिलते हैं, वो भी हमारे लिए परदेसी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उन्होंने सा ख्याल करना है। सही है। किसने? पासबान ने। पासबान ने, जिसको 10वां मिल गया, उसका काम है एक हिस्सा जो है उसका अपना है, उसके बाद परदेसी का उसने ख्याल करना है, उसके बाद और यतीम और यतीम
यतीम कौन है? जिसके माँ बाप जिसके ना औलाद ना हो। माँ या बाप। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कई लोगों को कि जब आपने कोई चीज़ देनी है, शुक्रगुजारी करनी है, तो आपने, कई लोग चर्चिज़ में देते हैं, अच्छी बात है, वो भी देने चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ भाई आप देग बनाएं, एक देग बना के ऐसे गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों में बांटें, जाकर दें जो खाने के लिए तरसते हैं। तरसते। सही हो गया? अक्सर मैं कई जगह पर बोलता हूँ ये बात, ठीक है? तो वो यतीम है जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, एक हिस्सा उनका बनता है, ठीक है? अब वो बच्चे हो सकता है आपको रोड पे कहीं नजर आ जाए, ठीक है? आप अच्छा कहीं खाना खाने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर जैसे ईटोन पे, इवन स्नैक्स पे बड़े हमें नजर आते हैं, बहुत सारे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? वो यतीम है, ठीक है? उसके अलावा यतीम अगर आपके जान पहचान में, ठीक है, आपके जान पहचान में कोई ऐसे आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं, मुमानत नहीं है। अच्छा आगे। और बेवा औरतें, और बेवा औरतें, बेवा औरतें कौन है? उनके शौहर ना हो। बेवा औरतें कौन है? शौहर, हैं? इनका शौहर। जिनके शौहर नहीं है, जिनके शौहर नहीं है उनको भी हिस्सा देना है, ठीक है? अब उनको कैसे हिस्सा देंगे, वो पता कैसे चलेगा सर? क्योंकि कितनी बेवाएं जो हैं वो हमें पता ही नहीं होता, ये भी बेवा है, ये भी राशन बेवा के तौर पर दे सकते हैं। है। राशन के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है? सर, यहाँ पे मैंने मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। खुदा ने बेवाओं के यानी बेवा औरतों को लेकर तो मर्दों के लिए क्यों नहीं लिखा? मर्दों का ऊपर दे दिया ना सर, क्या मर्द जी मैंने पहले बात की लाभियों का, तो वो बेवा तो नहीं है ना सर? नहीं सर वो मर्द है ना, वो कमाने वाले हैं ना, अपने घर के खुद कफील वही होते हैं ना, मर्द ही लाता है ना कमा के, ठीक है? तो मर्दों को ऊपर दे दिया सर, ठीक। ये चीज़ है। मर्द कमाए खुद ते ले आए ते खाए ते खवाए। बेवा लाचार है ना, उसका कमाने वाला कोई नहीं है, इस वजह से मर्दों को ऊपर दे दिया सर एक हिस्सा, जिन मर्दों को कुछ नहीं मिला, जी जी। जिनके कमाने के लिए कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जगह नहीं मैं दी। कोई तंज या आपके से नहीं कर रहा, नहीं नहीं सर, मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जगह जगह पर बेवाओं का जिक्र है, पर वहाँ पर कभी मर्द का नहीं जिक्र। सर ये परदेसी में मर्द आ जाते हैं, सही है, क्लियर है? अच्छा अब ये तो हो गई वो दही की जो खादम को मिलती है। अच्छा हाँ जी पूछें पूछें सवाल पूछें। ये पूरा मतलब ये पूरी आयत की थोड़ी सी डेफिनेशन करें ना कि जो बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हैं आए और खा कर शेर हों ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में। जी ये राशन की बात हो रही है ना, ये वही राशन को मैंने कहा है कि मतलब मैं- बेवा की राशन के मैं आप तौर लोगों से पर। कभी बात नहीं की, मैं अक्सर बैसल मुँह से ही बात करता हूँ, मैं इनको कहता हूँ क्या जितने अमाउंट मेरे पास आता है 10वें हिस्से के कमरे में, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं कुछ ऐसे ख़ानदान ऐसे घराने जिनको जानता हूँ उनके घर में उनको राशन से फ्री कर दूँ, पर मैं नहीं कर पाता, ठीक है? तो ये उनके लिए बात लिखी है, क्लियर हुई बात? सही है? और इसके अंदर ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो लोग बेवा ही हों, ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो यतीम ही हों, ये ज़रूरी नहीं है, सही। ठीक है? लेकिन ख्याल करें, आप ऐसे लोगों का ज़्यादा ख्याल करें, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको नीड नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे करना बनता है, यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। अब उसमें फर्स्ट प्योरिटी किसकी आती है? क्या बेवा यतीमों की फर्स्ट प्योरिटी आती है या किसी और की फर्स्ट प्योरिटी आती है? बाइबल मुकद्दस में एक आयत लिखी हुई है कि जब हमने फर्स्ट प्योरिटी में किसी को रखना है सर, तो फर्स्ट प्योरिटी के अंदर वो लोग हैं जो मोमिन हैं, जो ईमानदार हैं। फर्स्ट प्योरिटी में भी वो लोग हैं जो ईमानदार हैं। ईमानदार से मुराद क्या है? जैसे मेरे चर्च में मुझे नज़र आता है कि मेरे चर्च में एक कलीसिया में एक फैमिली ऐसी है जो खुद कफील नहीं है, जिनके खाने पीने का मसला है, जिनकी टेंशन है, जिनकी परेशानी है। यीशु मसीह ने इसी चीज़ को लेते हुए तो आगे फिर डिस्क्राइब किया था, कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स आए
जो भूखा हो तो तुम क्या करो, उसको खाना खिलाओ, अगर नंगा हो तो उसको कपड़े पहनाओ, बीमार हो तो उसकी तमाकदारी करो, प्यासा हो तो उसको पानी पिलाओ। तो ये सब फैसिलिटीज आनी कहाँ से हमारे पास? लोगों के 10वें हिस्से से जो खादम को ज़खीरा खाना को दिया जाएगा। सही हो गया। अच्छा, फिर बात यहाँ पे आ जाती सर, फिर और 100 जड़ा आया है खादम के कोल, उदे भी तो 3 हिस्से होने ने ना, है सर? जो खादम के पास आया है तो अब वो खादम तो उसके नहीं कर सकता 3 हिस्से, फिर क्या किया जाए? उसमें भी इशारिया 3 आ जाएगा, है उसमें भी इशारिया 3 आ जाएगा। उसमें भी इशारिया 3 आ जाएगा। आपने बोला ना कि मतलब 10वें हिस्से से आप ऊपर जा सकते हो, जी तो ज्यादा आप दे सकते, कम नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि खादम जो है, खादम उसने भी 10वां देना है। अब खादम ने तो दूसरों की दयायकियों के 3 हिस्से कर दिए सर, अब उसने 3 हिस्से दूसरों की दयायकियों के कर दिए, अब अपनी दयायकी के तो वो खुद 3 हिस्से नहीं कर सकता ना, उसको भी तो किसी ज़खीरा खाना के पास जाना पड़ेगा, है सर? बिल्कुल। तो अब इस सूरत में इस सिस्टम में वो क्या करे, कैसे करे? ऐसा बंद हो जाते हैं। देखें सर, इसका तरीक़ेकार ये है कि खादम अपना 10वां जो है चर्च फंड जहाँ पे जा रहा है, चर्च फंड जहाँ जमा हो रहा है सर, चर्च फंड से क्या क्या काम होते हैं? चर्च फंड से चर्च मेंटेनेंस के काम होते हैं, चर्च फंड से चर्च के अंदर कोई डेकोरेशन का काम हो वो होते हैं, चर्च फंड से चर्च के अंदर कोई चीज़ लानी हो तो वो होते हैं, ऐसे ना सर? अब वो चर्च फंड के ऊपर मुमताज़ वो शख्स हो जो कोई मेल पर्सन है, जो कोई खादम है। अब जब वो अपना 10वां हिस्सा खादम जब उसको देता है, हाँ जी ये मेरी तरफ से 10वां है, वो आपका 10वां लेकर चर्च फंड में डाल देता है। जब आपका 10वां हिस्सा चर्च फंड में चले जाता है, ठीक है, अब उस चर्च फंड में से क्या होता है कि कभी कभी खादमों की भी खिदमत की जाती है, ठीक है? जैसे कोई खादम आ गया, ठीक है ना, तो कई बार खादम को हदिया देना है तो चर्च फंड में से दे दिया जाता है, कई बार खादम आ गया तो उसके खाने का अरेंज करना है तो चर्च फंड में से कर दिया, ठीक है, तो खादम के पास चले गया। फिर उसके बाद उसके अलावा अगर चर्च में कोई कलीसिया ऐसी नज़र आती है, कोई ऐसे लोग नज़र आते हैं, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में खादम जो है वो दयायकियों से 10वें हिस्से से कर चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है कि वो कर सके, तो फिर चर्च फंड के अंदर वो हिस्सा मौजूद है जिसमें से कुछ किया जा सकता है। सही हो गया सर? फिर उसके अंदर किया जा सकता है। सही हो गया। तो सर ये तरीक़ेकार है जो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मैं जाना और समझा हूँ, जो मैंने आप लोगों तक भी शेयर किया है। अगर इसमें कोई सवाल हो या इसमें कोई बात हो जो ना समझ आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। लिहाजा ये तरीक़ेकार बाइबल मुक़द्दस का है, ये सिलसिला बाइबल मुक़द्दस का है, इस सिलसिले उस तरीके के मुताबिक हमें चलना चाहिए 10वें हिस्से के मुताबिक। तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम टॉपिक को आएंगे। आज का हमारा आमीन 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 आमीन। बेशक आज बेशक। हमने जो सीखा है वो दयायकी के क्या नबियों और रसूलों और पैगंबरों के ऊपर वो अहमियत थी जी वो बिल्कुल नहीं गुजान सकते थे। जी बिल्कुल सिर्फ 2 ही का अब- किरदार मिलता है, जी आगे क्यों नहीं मिलता है? अब जब हम देखते हैं एलीशा को, जी उसने 12 जोड़ी बैल जो है जी। वो उसके पास थे जी बिल्कुल और अमीर कबीर आदमी था जी बिल्कुल और वो भी उसने भी गुजारी। अयूब को देखते हैं, जी उसके पास 500 जोड़ी गधे और 500 जोड़ी बैल और बेतहाशा उसके पास भी वो है। और उस टाइम पीरियड में जिनके पास माल मवेशी होता था वो अमीर होता था। आज जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, वो अमीर कबीर आदमी है। ऐसे ही उस वक्त वो बड़े बड़े जो अब्राहम को देखते तो उसने अपने उसके बड़ेपन में से
اس نے खुदाबंद को गुजराना है। ऐसे ही और उन्होंने कुर्बानी के तहत गुजारा है। ऐसे ही जिनके पास माल मवेशी थे उन्होंने इस तरीके से गुजारा है। बिल्कुल तो हम कुरान खुदा का शुक्र करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हर एक चीज़ को अयां कर देती है, वो छुपाती नहीं है। आमीन। उसने आज तक कभी किसी चीज़ को अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो गुनाह भी बताया है बाइबल ने, उसने छुपाया नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात जो है हमारी बाइबल की कि उसमें कभी भी कोई चीज़ छुपी नहीं रही। और खुदावंद ने हर चीज़ हर नबियों पर, रसूलों पर, पैगंबरों पर उसने क्या की, अयां की। ऐसे आमीन। लेकिन इसके अंदर एक हिस्सा बाकी रह गया अभी, वो हिस्सा है रसूलों वाला, कि रसूल भी कहीं नज़र नहीं आते 10वां हिस्सा देते हुए। तो बात यह है कि रसूल तो वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। रसूल वो हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ जानवर नहीं, जानवर तो बहुत पीछे रह जाती है चीज़, रसूलों ने खुदा के लिए सेक्रीफाइस जो किया है, रसूलों ने जो खुदा के लिए छोड़ा है, अपनी ज़िंदगी तो वक्फ की है उन्होंने, अपने बीवी बच्चों रिश्तेदार नातेदारों को खुदा के काम के लिए छोड़ दिया है। लोग तो जगहें देते थे अपनी, लोग तो चंदे देते थे अपने, लोग तो हदिये देते थे। सर यार सारा हर बंदा निकाल सकता है, हर बंदा दे सकता है, लेकिन छोड़ के दिखाए ना जरा अपने बीवी बच्चों को, घर को छोड़ के दिखाए ना, निकले ना खुदा के काम के लिए, नहीं निकलते। उन्होंने तो वो काम कर दिया जो सर इंसान की सोचो गुमान में भी नहीं हो सकता, आज के इंसान किसी के दिल दिमाग में भी नहीं आ सकती, वो तो वो करके गुजरे हैं। तो फिर सर उनके साये से शिफा क्यों ना हो? बिल्कुल हैं? उनके रुमाल और पटकों से जिस्म से लगा के बीमारों पे डाल के बदरुए क्यों ना निकले, क्यों ना शिफा पाए? उन्होंने तो वो कर दिया जो आज का इंसान कर ही नहीं सकता। तो ये दुनियावी चीजें, रुपया पैसा धन दौलत जान माल, ये सब चीजें तो बहुत पीछे रह जाती हैं। उन्होंने तो वो दे दिया जिसके बारे में इंसान सोच ही नहीं सकता। तो इसलिए उनकी कुर्बानी, उनका देना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ना सिर्फ ये काम किया उन्होंने, बल्कि जो रुपया पैसा उनके पास आता था, जो चीजें उनके पास आती थी, वो सब खुदा के काम में सर्व करते। कभी उन्होंने अपनी जात पे नहीं लगाया, कभी उन्होंने अपनी बिल्डिंगें नहीं खड़ी की। आज जिस तरह लोग कर रहे हैं, आज जिस तरह खादम कर रहे हैं, गोरे से आता है पैसा 10 लाख रुपया, लाख रुपया लगाते हैं कन्वेंशन पे तो 9 लाख रुपया जेब में। गोरे से आता है 1 करोड़ रुपया, 20 लाख रुपया लगाते हैं खुदा के काम पे, 80 लाख की बिल्डिंग खरीद लेते हैं। उन्होंने ये काम नहीं किया, लोगों ने अपने घर बेच के उनके सामने ला, उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने जो उनके पास आया उन्होंने खुदा के काम के लिए लगाया, खुदा के काम में लगाया। जब खुदा के काम में लगाया, खुदा के काम के लिए लगाया, तो इसीलिए तो आज मैं और आप मसीही हैं। अगर उन्होंने ऐसे ना किया होता तो वो भी आजकल के पासवानों की तरह ज़्यादा सियाने हो जाते, ज़्यादा समझदार हो जाते, तो फिर आज हम लोग भी क्रिश्चियन नहीं होते, मसीही नहीं होते। फिर पास्टर साहब, फिर ये उनके लिए ये कलाम में लिखा है कि तुम के हदियों में से तुम मुझे ठगते हो। किनके लिए? मतलब जो खुदावंद का है, वो जिनके पास हदिया आता है, खुदावंद के घर का है वो, पर उसको वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेते हैं। ये नहीं, ये कहा गया नहीं, है हदिये के लिए ये बात लिखी गई है कि देखें, हदिया जो है, हदिया भी आप खुदा के खादम को दे सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, दे सकते। वो खादम का ही है, खादम उसको यूज़ कर सकता है। ये हदिया जो दई की और हदिये बारे में लिखी है बात, ये तमाम लोगों के लिए लिखी है, नीचे सुनने वालों के लिए भी और ऊपर खादमों के लिए भी है। ठीक है, कई बार मैंने ऐसे खादम देखे हैं, वो जब हदिया होता है चर्च का सर, तो उसके अंदर खादम हदिया नहीं डालते, वो समझते हैं शायद हमारी ड्यूटी ही नहीं है। जितना नीचे बैठी अवाम का काम है हदिया देना, उतना ही खादम का काम है हदिया डालना। बिल्कुल ऐसी है। तो खादम को भी हदिया देना है और अवाम को भी हदिया देना है, तो दोनों के लिए वो बात। ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू।